Okay, so ninth class, we are going to start with the chapter tissue for the NTSC exam. As you are very well aware that what is a tissue, that it's a group of cells similar in structure and that they work together to achieve a particular function, right? We have discussed it many times before and there's not a new definition. Now, if we look at the organisms present around us, so basically the major categories that we can see is plants and animals, right? Though there are other categories also present, which we call them as microorganisms. But for this chapter, we'll be focusing on plant tissues and animal tissues, right? Because we are majorly talking about the multicellular organisms. Usually, microorganisms are unicellular, right? Some of them are multicellular, but only few. Usually, most of them are unicellular. So we are focusing on multicellular. That's why we'll be talking about the plant tissues and animal tissues. Now there is a line that's called as division of labor. Division of labor का मतलब क्या होता है? काम काम बांट लेना, right? So if we focus on plant and animal tissues, there is division of labor. मतलब a certain tissue is designed to do a particular work and some other tissues are designed to do another work. So that is what is called division of labor. So division of labor in plant is seen in plant tissues as well as in animal tissues, right? And this division of labor is also very, very important. Why? Because there's a huge body size of plants and animals. In addition to that, because of huge body size, it's difficult for each cell to cope up with the needs of the body, right? क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी का साइज बड़ा है, फिर उसका मतलब इतने सारे टिश्यूज़ हैं, उसका मतलब इतने सारे सेल्स हैं, राइट? तो इसकी वजह से बॉडी की नीड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हर सेल के लिए अपनी नीड्स को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है कि ये सारे सेल्स मिलकर एक साथ एक काम करेंगे, आफ्टर दैट ये सारे टिश्यू मिलकर एक साथ एक काम करेंगे। सो दैट बिकॉज दे आर टुगेदर डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे आर टुगेदर ट्राइंग टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, it becomes relatively easy to do that particular function. Okay, so division of labor is काम का बट जाना. Like for example, in your class, I say you that this particular line or these particular five students will do the task to make a project. After that, for the rest of the five students, I can give you a task like you need to make a PPT. After that, for rest of the five students, I can give you a task that you need to ensure that our room is cleaned, right? So that's how काम का बढ़ जाना is called as division of labor. Okay. After that, there are some specific terms that is important. There are just three terms that you need to remember, or three facts that you need to remember, and these are important for MCQ. Rest is all almost we have covered, right? So the very first point, please note it down somewhere that the term tissue was coined by Weishart, right? That's the name of a scientist. After that, you need to understand that what is anatomy, because whenever you'll be going to higher classes, there would be two terms, anatomy and morphology. So anatomy is actually study of internal structure of any part of an organism with the help of section cutting. Section cutting क्या होता है? See, what we do is, like, we take the any internal part or we take any internal organ, फिर हम उसको बॉडी में से अलग निकाल लेते हैं, देन वी कट इट इनटू थिन स्लाइसेस और थिन सेक्शंस. व्हाई? इन ऑर्डर टू स्टडी इट, राइट? ताकि हमें पता चल सके उसके टिश्यू क्या है, उसके अंदर सेल्स कौन से प्रेजेंट हैं, या फिर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या है. सो दैट स्टडी इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. एंड देन एनाटॉमी के साथ साथ एक और वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ द आउटर पार्ट्स, राइट? जब भी हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or any part of organism, it's called as anatomy. So please remember it. Sometimes the question may be asked that study of internal structure is called as dash. So so your answer should be anatomy, right? After that,
because we are going to study about tissues in this chapter, so you should also remember that what is the study of tissues called. So it is called as histology. Now I hope you are clear about this, that whenever we need to study about the tissues, it's usually extracted from a living organism like a animal or a plant. Then it's cut into different sections, right? छोटे छोटे thin slices में काट लिया जाता है या छोटे छोटे sections में काट लिया जाता है. Then that particular section is placed under the microscope. उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उस टिश्यू के हम फीचर्स पढ़ते हैं, उस टिश्यू के करेक्टर स्टडी किए जाते हैं. इन दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, राइट? Okay, so we are very well aware about the difference between plant tissues and animal tissues. Plant tissues stationary हैं, animals mobile animal जो tissues हैं, because animals move कर सकते हैं, that's why we called as they are mobile, right? Plant tissue का organization relatively simple है, animal tissues are complex. Plant में ज़्यादा dead tissues है, animal में living tissues है, right? Plant ने एक ही जगह रहना है, वो एक जगह फिक्स्ड है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. एनिमल टिश्यूज़, क्योंकि एनिमल्स लगातार मूव करते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट? प्लांट अपनी लाइफ टाइम थ्रू आउट ग्रो करते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स एक मैच्योरिटी स्टेज आने के बाद आगे ग्रोथ नहीं दिखाते. कुछ ही कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं, वो भी इसलिए ग्रोथ दिखाते हैं, लाइक आर हेयर एंड आर नेल्स. दैट टू जस्ट बिकॉज वहाँ पे डेड सेल्स आगे होते रहते हैं, वहाँ पे कुछ ग्रोथ आज सच नहीं हो रही, राइट? And if we talk about the plant tissues, I hope we are very, very well clear about the division of the plant tissues. One is meristematic and the another is permanent. Meristematic का मतलब क्या था? That keeps on dividing, right? And the permanent, which stops dividing after attaining a particular stage or after attaining a particular maturity, right? तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट टिश्यू विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग. तो लगातार डिवाइड करता रहता है and is found in three particular places, that is called as apical, lateral and intercalary. Okay, and if we talk about the permanent tissue, that is divided into simple and complex, right? तो permanent tissue जो है, that is divided into simple and complex. और simple का मतलब क्या था? Made up of one type of cell. और complex का मतलब क्या था? Made up of more than one type of cells, right? So I hope it's clear to you. It's just a revision of that. Simple में हम फिर से divide कर देते थे parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma में क्या था? Mainly meant for food storage. अगर उसमें chlorophyll है, that would be called as sclerenchyma. अगर उसमें कैविटीज हैं, दैट वुड हेल्प इट टू फ्लोट, राइट? उसको हम क्या बोलते थे? एरेनकाइमा. कॉलेनकाइमा क्या करता है? इट हेल्प्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. स्क्लेरेनकाइमा meant for providing the mechanical strength, right? After that, complex था, made up of more than one type of cells. And in that, xylem and phloem are the constituents. Xylem meant for conduction of water, phloem meant for conduction of food, right? मेरिस्टेमेटिक में एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप पर. तो जो टिप पर प्रेजेंट है, दैट वुड बी कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड पर. तो जो साइड पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, दैट वुड बी कॉल्ड एज लेटरल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लेटरल का काम क्या है? ऑल ऑफ यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस कि जब हम कोई प्लांट को ग्रो करवाते हैं, जब वो प्लांट अपनी बहुत यंग स्टेज में होता है, राइट? फॉर एग्जांपल इन द फ्लैट पॉट्स ऑफ आवर होम्स, उस टाइम उनकी जो स्टेम होती है बहुत ग्रीन होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, राइट? बट इफ दैट प्लांट इज मेंट टू बी ग्रोन इनटू अ ट्री, अगर वो प्लांट बड़ा होकर एक ट्री बन जाता है, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि छोटी स्टेज में तो उनकी स्टेम कितनी सॉफ्ट थी, ग्रीन कलर की थी, बट व्हेन दैट प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्री, वो स्टेम कितनी हार्ड हो जाती है, कितनी ब्रॉड हो जाती है, और वो ब्राउन कलर की हो जाती है. सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द action of lateral meristem, right? It's also called as secondary growth. इसको हम secondary growth भी कह देते हैं. And after that, the next is intercalary meristem. Intercalary हम किस चीज़ को कहते हैं? Intercalary हम बोलते हैं, see for example, let's just assume that this is a branch, okay? अगर ये branch है, branch of a tree or anything, right? एक ये point होगा जहाँ पर कोई एक leaf grow करेगी, right? After that, this would be any other point जहाँ पर एक और leaf grow करेगी.
ये एक और पॉइंट है जहाँ पर एक लीफ ग्रो करेगी। एपिकल पार्ट हो गया ये टिप वाला पार्ट, राइट। अब देखो जहाँ पर ये लीफ ग्रो कर रही है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नोड। अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड। दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड, राइट। हो सकता है यहाँ से एक और ब्रांच इमर्ज हो जाए, बट दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड। NODE, right? And the area between the two nodes is called as internode, okay? तो ये जो दो नोड के बीच वाला एरिया होगा दैट वी कॉल इट एज इंटरनोड। तो इंटरनोडल एरिया में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। व्हाट डज इंटरकैलरी मेरिस्टेम डू? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इंटरनोडल एरिया। इंटरनोडल एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। So that's all about the categorization of plant tissues. Now it's this meristematic tissues. So you need to remember that these are the living tissues. Okay. And in addition to that, they are capable of division throughout the life. Remember that these tissues are found in the growing regions of the plants. Also, you might be asked about the characteristic features of the tissues, that the cells of these tissues have thin wall. They are compactly packed with no intercellular spaces, right? In addition to that, they do not have any vacuole because vacuoles are meant for the storage of substances, right? In addition to that, vacuoles obtain a particularly large space in a cell. हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन करनी है, हमें कुछ स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नीड टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, तो विक्यूल क्या करेगा? विक्यूल डिवीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इतना बड़ा सा स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लेता है। सो दैट्स व्हाई विक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। देन साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ओके। आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर द लोकेशन, right? They are present at three specific points: apical meristem at the growing tip, lateral meristem on the lateral side of stem and root, and intercalary meristem at the base of leaves or an internodal area, right? Function of apical meristem: growth and length. And if we talk about the function of intercalary meristem, its function is in the growth and length of internodal area, right? Internodal area को increase करने में help करता है. And if we talk about the lateral meristem, it helps for the growth in diameter. Diameter या width increase करने में help करता है. After that, one more thing that you need to remember, please note it down somewhere, that whenever we talk about the lateral meristem को हम divide कर देते हैं. Please divide it. Categorize it like whenever you try to make a flow chart, like write down lateral meristem and then make two arrows, right? दो arrow लगाकर note down कर लीजिए. It can be divided into vascular cambium and cork cambium. VASCULAR, vascular cambium. Cambium आपको यहाँ पे already लिखा हुआ है. So vascular cambium, and the next is cork cambium, CORK. Okay, vascular cambium and cork cambium. तो vascular cambium के नीचे please note it down that vascular cambium is responsible for producing secondary phloem and secondary xylem, because sometimes the question might be asked that what is the function of vascular cambium. See, actually होता क्या है, जब आपने वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि जो हमारा स्टेम है वो फिर ब्राउन हो जाता है, वुडी हो जाता है, कितना डायमीटर उसका इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पर हमें फिर से कंडक्शन के लिए न्यू टिश्यूज चाहिए होते हैं. एंड देन वी से कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं. सो दैट सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टेक्स प्लेस बाय वैस्कुलर कैम्बियम. वैस्कुलर बंडल्स मैंने आपको पहले ही बताया है, वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम. तो वैस्कुलर कैम्बियम मीन्स that will form the secondary xylem and secondary phloem. After that we have also discussed कि एक और part कौन सा है? Cork cambium, right? So cork cambium is also called as phellogen. Note it down, phellogen. 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 And please note it down, इसके नीचे लिखिए, it forms a protective cork.
प्रोटेक्टिव कॉर्क क्या है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट. इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कॉर्क ऑन द आउटसाइड. जो ब्राउन वाला पार्ट दिखता है, हार्डवुडी पार्ट, इट्स फॉर्म बाय कॉर्क कैम्बियम. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में हो क्या रहा है, दैट सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर बीइंग डिफरेंशिएटेड. क्यों डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएशन से होगा क्या, उनको एक परमानेंट शेप मिल जाएगी, एक परमानेंट साइज मिल जाएगा और एक परमानेंट फंक्शन मिल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दैट दे आर बीइंग differentiated. Okay, so after that, simple permanent tissue differentiated into three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Simple का मतलब क्या है, made up of one type of cell, right? So parenchyma we have already discussed, thin cell wall है and made up of cellulose, right? Loosely packed cells है. साथ ही साथ they help in storage of food. अगर अब हम बात करते हैं एरनकाइमा की, तो जिनमें लार्ज एयर कैविटीज हैं और फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरनकाइमा, राइट. यूजुअली एक्वाटिक प्लांट्स में ये मिलता है. और अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा. एंड इन एडिशन टू दैट यू कैन रिमेंबर कि ये जो क्लोरेनकाइमा है ना, दैट इज फाउंड इन मीजोफिल ऑफ लीव्स. लीव्स की मीजोफिल में मिलता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इसकी मीजोफिल क्या होता है. सी व्हेनेवर you look at the structure of a leaf, it can be divided basically into two parts: mesophyll and ground substance. तो mesophyll क्या होता है, inner tissue of a leaf is called as mesophyll, right? तो टिश्यू का अंदर वाला पार्ट जिसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसको हम बोल देते हैं mesophyll. So please note it down कि जो क्लोरेनकाइमा होता है, that is usually found in the mesophyll of leaves. Okay, so collenchyma कोई न्यू नहीं है. वी ऑलरेडी नो दैट इज इट्स मेंट फॉर प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी. फीचर क्या है, इरेगुलरली थिकनड है. कॉर्नर्स पे इसकी थिकनिंग है, इरेगुलरली थिकनिंग है. वाई, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन. इसके कॉर्नर पे पेक्टिन की डिपोजिशन हो जाती है. व्हाट इज पेक्टिन? पेक्टिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कॉर्नर्स पे डिपॉजिट हो जाता है कॉलन काइमा के, और कॉर्नर्स पे डिपॉजिट होने की वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, राइट. इलास्टिसिटी भी ये प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट के टिश्यूज को, एंड इट अलाउज इजी बेंडिंग. प्लांट्स की इजी बेंडिंग कौन करवाता है, कॉलेनकाइमा कराता है. आफ्टर दैट इट्स स्क्लेरेनकाइमा. तो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं, नारो होते हैं, राइट. जो वॉल्स होती हैं इसकी जनरली थिक होती है स्क्लेरेनकाइमा के, बिकॉज इट इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल प्रोटेक्शन. ऑल्सो रिमेंबर, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन की डिपोजिशन होती है. There is a deposition of lignin in sclerenchymatous tissue. कहाँ मिलेंगे, स्टेम्स में मिल सकता है, रूट में मिल सकता है, लीफ की वेन्स में. लीफ की वेन्स क्या होती हैं, जब आप लीफ को देखते हो तो आप जब ध्यान से देखते हो तो आपको लगता है एक सेंटर में कुछ लाइन जा रही है, देन उससे इमर्ज होती हुई कुछ अलग अलग लाइंस जा रही हैं, राइट. जो सेंटर में लाइन जाती है जिसमें थ्रू आप लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज मिडरिप. और उसके साइड पे छोटी छोटी और लाइंस जाती हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स, राइट. तो उनमें भी हमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू मिलता है, बिकॉज यू माइट हैव नोटिस्ड कि जो हमारी लीफ है आपने देखा होगा उसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, बट जो ये वेन वाला पार्ट होता है वो पर्टिकुलरली हार्ड होता है, राइट. क्यों? क्योंकि इसमें स्क्लेरेनकाइमा की डिपोजिशन होती है. सीड्स की कवरिंग में, नट्स की कवरिंग में, स्पेसिफिकली क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द हस्क ऑफ कोकोनट. जो कोकोनट होता है उसका ब्राउन वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हस्क ऑफ कोकोनट, और उसमें कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरन कामेटस टिश्यू, राइट. आफ्टर दैट दिस इज द डायग्राम आपका पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा का. ओके, स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा को आप देखोगे ध्यान से, अगर आप एनसीईआरटी में भी देखो, दो टाइप के दिखाए हुए हैं, फाइबर एंड स्क्लेरेट्स, राइट. तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये यूजुअली दीज फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, राइट. फॉर एग्जांपल जूट फाइबर्स की हम बात करते हैं, या फिर हस्क ऑफ कोकोनट जो है, सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स.
इनका मेजर काम क्या है? मैकेनिकल टिश्यू, राइट। और ये यूजुअली अबंडेंस, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं हमें प्लांट्स में। इसके बाद आपको एक और स्क्लेरेंकाइमेटा का पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेराइड, राइट। प्लीज नोट इट डाउन कि स्क्लेराइड को हम ग्रिड सेल्स भी बोलते हैं, GRIT, ग्रिड सेल्स या फिर स्टोन सेल, STONE, ग्रिड सेल और स्टोन सेल। ये फाइबर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थिक होते हैं and they are irregularly shaped cells, right? We already know that these are dead cells. So these are usually found in the phloem, in heart, seeds, coat, right? इनका function क्या है? Usually they are meant to be in the सीड कवरिंग। एक सीड की कवरिंग कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, तो सीड कवरिंग में स्पेसिफिकली स्क्लेराइड्स मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारे फ्रूट का पल्पी पार्ट होता है ना, गुआवा का, एप्पल का या पेयर का जो पल्पी पार्ट होता है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? स्क्लेराइड्स मिलते हैं, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे नाम याद रखना कि फाइबर है और स्क्लेराइड है। स्क्लेराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिट और स्टोन सेल्स। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आफ्टर दैट गार्ड सेल्स और एपिडर्मल टिश्यू, तो हमें पता है कि एपिडर्मिस में क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। जो आउटर सेल होते हैं उनमें यूजुअली एक लेयर प्रेजेंट होती है, वाटरप्रूफ लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, राइट। क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है तो वो वाटर प्रूफिंग का काम करती है ताकि वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें लेयर हेयर प्रेजेंट होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम। अगर स्टेम पर कुछ हेयर प्रेजेंट है, दोज हेयर आर कॉल्ड एज ट्राइकोम। अगर वो हेयर रूट पर प्रेजेंट है, सो दे आर कॉल्ड एज रूट हेयर, ओके। ऑल्सो कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस मतलब विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, अगर वो हेयर इंसेक्टिवोरस प्लांट पे प्रेजेंट है, देन वी कॉल देम एज ग्लैंड्स। अब आप इस ग्लैंड को एपिथेलियल टिश्यू वाले ग्लैंड से कंफ्यूज मत करना, बट वी आर बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लांट टिश्यू राइट नाउ, तो हम उनको ग्लैंड्स बोल देते हैं। यूजुअली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इफ दोज हेयर आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, व्हाट इज द नेम गिवन टू दोज हेयर? उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम। फिर क्वेश्चन आता है कि इन हेयर का काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। दीज हेयर आर मेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से होगा क्या? एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगी, राइट। एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं क्योंकि जब भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, बाहर से कुछ भी एब्जॉर्ब करना है या फिर सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में दे हेल्प, राइट। आफ्टर दैट और क्या होता है? एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या करता है? हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ gases and it also works to cool down the temperature of the plant, right? After that, one more thing that you need to understand, that's the last line in this slide. There is a word called as cork formation, right? So please understand कि ये cork है क्या? So how do we define cork? Cork is actually the outermost tissue that is also waterproof, right? outermost जो टिश्यू है, वाटरप्रूफ टिश्यू है, कहाँ मिलता है? ओल्डर या मेच्योर प्लांट्स में। ओल्डर और मेच्योर प्लांट्स में कौन सा पार्ट? जो वुडी वाला पार्ट होता है ना, जो बाहर वुड बन जाती है, राइट। जो पुराने स्टेम होते हैं या पुराने रूट होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो बाहर वाला पार्ट होता है वो कितना ब्राउन पार्ट होता है, कितना हार्ड पार्ट होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क। रिमेंबर, ये डेड सेल्स का बना होता है एंड इसमें किसकी डिपोजिशन होती है? सुब्रिन की। क्वेश्चन स्पेसिफिकली यही पूछा जाएगा कि कॉर्क में कौन से सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है, सो योर आंसर शुड बी दैट इज द डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। नाउ द क्वेश्चन इज, सुब्रिन का डिपोजिशन से फायदा क्या होता है? व्हाट डज सुब्रिन डू? सुब्रिन प्रोवाइड्स इंसुलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। बहुत ज़्यादा हीट से और बहुत ज़्यादा कोल्ड से सुब्रिन बचा कर रखता है। साथ ही साथ जो हमारा कॉर्क है ना, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दोज पोर्स आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। नोट इट डाउन,
lenticels, 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 राइट। लेंटिसेल्स जो है छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है कॉर्क की आउटर सरफेस पे। क्या काम करते हैं? दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। Sometimes the question is asked that what is the function of lenticels, so please remember that they allow the exchange of gases. Okay, after that let's move towards the complex permanent tissue. Complex का क्या मतलब था? They are made up of more than one type of cell, right? अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में अलग अलग टाइप के सेल हैं, कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है, राइट। ट्रेकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अगर मैं ट्रेकेट्स की बात करूं, ट्रेकेट्स इलोंगेटेड सेल्स हैं और डेड सेल्स हैं, राइट। ट्रेकेट्स क्या हो गए? डेड सेल्स। इन जो ट्रेकेट्स है ना, उनके एक तो वो नैरो होते हैं और उनके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते, ब्लंट एंड्स होते हैं, राइट। इनके जो वॉल्स होती हैं ट्रेकेट्स की बहुत हार्ड होती हैं और ट्रेकेट्स की वॉल में लिग्निन के डिपोजिशन होती हैं। दैट्स व्हाई दे इट्स आल्सो कॉल्ड एज दैट दे हैव लिग्निफाइड वॉल्स, मतलब लिग्निन की डिपोजिशन है। ओके, आफ्टर दैट इफ वी थिंक अबाउट द वेसल्स, ट्रेकेट्स के कंपैरेटिवली वेसल्स बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड हैं, बट ये वाइड ज़्यादा होते हैं। ट्रेकिड्स कम वाइड होते हैं, वेसल्स ज़्यादा वाइड होते हैं, राइट। इसके बाद ट्रेकिड्स और वेसल्स का काम क्या है? क्विक मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की क्विक मूवमेंट करना, दैट इज इंश्योर्ड बाय ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो मेनली इनका काम क्या है? फूड की स्टोरेज करना, राइट। साथ ही साथ जाइलम पैरेन्काइमा आल्सो हेल्प्स इन द लेटरल कंडक्शन। लेटरल कंडक्शन का मतलब क्या होता है? साइडवेज। हॉरिजॉन्टल कंडक्शन में जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प कर देता है, दो इट्स प्राइमरली मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो कभी कभार ना आपके पास क्वेश्चन आ जाता है दैट नेम द टिश्यू which is meant for the conduction of sap. Sap होता है water and minerals, right? Note it down. हम usually sap बोल देते हैं, SAP. Sap का मतलब होता है water and minerals, right? तो xylem is responsible for the conduction of sap in plants, and in addition to that, it also provides mechanical support. Okay. If we talk about the phloem, चार main elements हैं. Remember, it's also called as bast. B-A-S-T. Phloem is also called as bast. B-A-S-T. Right? अगर हम इसके components की बात करें, sieve tubes है, companion cells है, right? Again, other two are same, that is phloem fibers and phloem parenchyma. sieve tubes की बात करें तो elongated tube-like cells है. इनमें क्या होता है? बहुत सारे मेंबर से बना होता है ये, एंड टू एंड वो जॉइंट होते हैं। अगर मैं सीव ट्यूब की बात करूँ तो इनके जो एंड होते हैं ना, उन पे बहुत बड़े बड़े से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट इज लाइक अ सीव। सीव क्या होती है? छान, जिसको हम बोलते हैं ना छाननी। लाइक फॉर एग्जाम्पल द सीव, जब हम चाय छानने के लिए यूज करते हैं, जो चाय छानी होती है उसमें क्या होता है? लिक्विड जो है या उसमें अगर कुछ डिजॉल्व है, उस लिक्विड में अगर कुछ डिजॉल्व है वो पास ऑन हो जाएगा और जो बड़े बड़े से पार्टिकल्स हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। तो सीव ट्यूब में ऊपर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सीव प्लेट, राइट। एवरी सीव ट्यूब इज एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। क्यों? क्योंकि हमारे सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है तो काम कैसे चलेगा? साथ वाले सेल से। दैट्स व्हाई साथ वाला सेल इज कॉल्ड एज companion cell. What is the function of them? Their function is that they help in the transportation of organic food. Okay. Remember, mature sieve tube में nucleus नहीं होता, and this question is usually asked कि name a cell of phloem which doesn't have a nucleus but it's living.
So your answer should be a mature sieve tube. So sometimes another question might be asked कि अगर इसके पास nucleus नहीं है, so how does it survive? Because the nucleus of companion cell helps it to survive, right? It helps it to perform the various function. Companion cells क्या है? Thin walled cells हैं जो sieve tubes के साइड पे लाई करते हैं. sieve tube के साथ वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं. रिमेंबर एसोसिएटेड कैसे होते हैं? एक जंक्शन होता है. You need to remember the name of the junction. See, whenever you will be going to higher classes, वहाँ पे ना आप बहुत सारे junctions पढ़ते हो. Like there are various kind of junctions which are found in plant cells and there are also various kind of junction which are found in animal cell. Cell to cell junctions होते हैं और उन junction का काम क्या होता है? Cells को आपस में साथ में adhere करके रखना. साथ ही साथ in order to facilitate the communication between different cells, right? तो यहाँ पे भी because we are talking about the sieve tube and companion cell, यहाँ पे भी सेल के बीच में communication होना ज़रूरी है. So there would be some junctions present and the name of those junction is plasmodesmata. PLASMO. Plasmodesmata. DESMATA. Plasmodesmata. Right? Remember again, plasmodesmata, PLASMO, plasmodesmata. नाउ रिमेंबर क्योंकि ये इतने क्लोजली एसोसिएटेड है तो अगर कंपेनियन सेल की डेथ हो जाती है तो साथ ही साथ सीव ट्यूब की भी डेथ हो जाएगी, राइट? कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब के सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी कंट्रोल करता है. इफ वी टॉक अबाउट द फ्लोएम पैरेन्काइमा, इट स्टोर्स द फूड and it helps in conduction of फूड इन लेटरल डायरेक्शन एज वेल. जैसे हमने जाइलम में बात की थी कि पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है? फूड स्टोरेज, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी वही मेन काम है. आफ्टर दैट फ्लोएम फाइबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर्स. लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? बास्ट भी बोलते हैं. सो फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर. They help to write mechanical strength, right? So, and in addition to that, except phloem fibers, all other phloem cells are living. So here we have completed the discussion of plant tissues. Next class, we will be discussing about animal tissues and we'll be completing this chapter, right?